हाँ सर, हो गए। श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 6 of Srimad Bhagavad Gita, Atma Sanyam Yoga, verse number 26, श्लोक संख्या 26. Shri Bhagwan Vach, Lord Krishna says, Yato yato nishcharati manasyanchalam asthiram tatastatho niyamya tat atmanyeva vasham nayet. Yato yato nishcharati manah. Yato yato, where man, the mind wanders. There are the several places of attraction in this material world. Yato yato nishcharati mana, where the mind wanders. Wherever and whenever it wanders. Mana, chanchalam asthiram, that is the tendency or nature of mind, that it is chanchalam, it is restless, and asthiram, it is unsteady. So at that time, what should we do? When this unsteady mind and restless mind, asthiram, chanchalam, mana, yato yato nishcharati, when this restless and unsteady minds wanders here and there and whenever, tatas tato niyamya tat, then at that time niyamya etat, restrain it, etat, restrain this mind, atmanyev vasham nayet, and bring it back to soul. Lord Krishna says that the literal meaning of this verse, yogi should bring this mind under the subject of self itself by restraining it from all those causes wherever due to which the restless, unsteady mind wanders away. भगवान कृष्ण कहते हैं, जब जब ये अस्थिर और चंचल मन जहां जहां जाए, जहां जहां भागता है, तब तब इसे वापस लाकर आत्मा में ही स्थापित करना चाहिए। तो जो आत्म संयम योग, इस चैप्टर का नाम है आत्म संयम योग, दैट इज कंट्रोलिंग द माइंड एंड रिस्ट्रेनिंग इट टू सोल। सो दैट्स व्हाई दिस इज आत्म संयम योग। यहाँ संयम के द्वारा योग को पाना सिखाया गया है। ये जो सांख्य योगी होते हैं, जो आरोह मार्गी होते हैं, उनका पथ है। तो मन यहाँ वहां भागता है तो वो बार बार उसको वापस लाकर पुनः स्थापित करते हैं और ध्यान लगाते हैं। नाउ success is meditation and it is not achieved in a day. The path of perfection is long and arduous. When we sit for meditation and focus to ourselves or God, at that time, this mind wanders here and there for sankalp and vikalp. Some things, there are the certain things it wants, and for that it is getting determined, that is sankalp. And some are the things or objects it does not want, it discards them, and that is the vikalp. So this mind is having certain kinds of sankalp and vikalp. That's why it wanders here and there, and its motion or its activity starts bigger at the time when we sit in meditation. जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ऐसे समय में हमारे मन की क्रिया और तेज हो जाती है, ये बाहर भागने लगता है। वैसे तो ये ध्यान के समय और भागता है। किसी का हमें उसे म्यूट कर दें, देखिए किसी का power of discrimination, we decide that the world is not our goal,
and hence we forcefully, ऐसे समय में हमको ये ध्यान रखना चाहिए अपने इंटेलेक्ट से, अपने बुद्धि चैतन्य से। सो अवर इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस, एक होता है मानसिक चेतना, एक होता है बौद्धिक चेतना। सो बाय अवर इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस we should discriminate that no, this world is not our goal. Our goal is the super soul. Our goal is submission at the feet of Lord. जब हम ऐसा करेंगे तो ऐसे में बुद्धि ज्यादा ऊंची है मन से, तो बुद्धि के द्वारा इस मन को वापस हम आत्मा में स्थित कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्स इज वर्स नंबर 27। प्रशांत मनसं येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कल्मषम। प्रशांत मनसम ही एनम, so those yogi whose mind is peaceful, now the whose mind is tranquil, whose mind is now in peace, do not wander here and there. Yoginam sukham uttamam, they attain the ultimate happiness. Those mind, जिसका मन स्थिर हो गया है, वे योगी ही उस उत्तम सुख को पाते हैं। उपैति शांत रजसम, उपैति whose rajasic virtues, whose the virtues of passion is now subdued. So those whose virtues of passion is subdued, it is completely sublimed, those get Brahma Bhutam, ultimate merge with that Supreme Lord, and Akalmasham, they are sinless. वे योगी जिनका मन शांत हो गया है और जो राजसी गुणों से, राजसी गुण क्या होते हैं? राजसी गुण होते हैं जो इंद्रियों के द्वारा हम सुख पाते हैं, राजसिक सुख, जैसे कि जीभ के द्वारा सुख पाया, नाक के द्वारा सुख पाया, सुगंध का, आंखों से अच्छा देखने का सुख पाया, अच्छा सुनने का सुख पाया, इंद्रियों से पाए गए सुख को, त्वचा से अच्छे स्पर्श का सुख पाया। तो इन सब गुणों से जो ऊपर उठ जाता है, जिसका मन शांत है, ऐसा योगी अकल्मष है, वो सिनलेस है, वो पाप रहित है, और वह मुझ में ही निवास करता है और अनंत सुख, सुखम उत्तमम, उत्तम सुख को पाता है। What is the literal meaning of this verse? That is supreme bliss come to this yogi alone, whose mind has become perfectly tranquil, whose rajas has been eliminated, and who has become identified with Brahman and is taintless. Yogi perfects the practice of withdrawing the mind from senses, sense objects, and securing it to God. Here it is Atma Sanyam Yoga. So yogi repeatedly practice it again and again. When and when mind goes outside, again and again it brings it back by using intellect. बुद्धि के द्वारा वो मन को समझाता है कि तुम वापस आ जाओ, क्योंकि संसार में कुछ नहीं है और ये आत्मा राम ही सब कुछ है। जब हम इसे बार बार समझाते हैं, बार बार ऐसा करके वो अपने प्रयास से वो उसे वापस ले आता है और उसका मन मायापति के चरणों में आने पर शांत हो जाता है अंततः, और ऐसे में फिर वो योगी अनंत सुख को पाता है और वो पाप रहित होता है। ऐसा आत्म संयम योगी करते हैं। भक्ति मार्ग में तो हम भगवान का जप करते हैं, उनके गुणों का ध्यान करते हैं और मन के ऊपर ध्यान नहीं देते, ये अपने आप ही भगवान में रम जाता है। जैसा कि हम कीर्तन में, भजन में देखते हैं, ये कहीं नहीं जाता बल्कि कीर्तन की ओर ही रमता है। तो दो अलग अलग मार्ग हैं। अध्याय 6 आत्म संयम योग है, यहाँ पर योगी को एकांत में बैठकर मन को बार बार लाना होता है। फिर भी ये योग का मार्ग है जो भगवान से मिलाने वाला है। तो भगवान यहाँ आत्म संयम योग की चर्चा करते हैं। हाउ वी शुड ब्रिंग बैक माइंड टू सोल व्हेन इट वांडर्स अगेन एंड अगेन टू आउटवर्ड्स। So by the using of discrimination, by the power of intellect, we can bring it back. Such Lord Krishna is saying. Now the next verse is Yunjannev sadatmanam yogi vigata kalmashaha sukhen brahma sansparsham atyantam sukham ashnute. Yunjannev sadatmanam,
That means uniting. Iv, yunjan iv, uniting it. Sadatmanam, yogi, vigat kalmasa. Always unite this mind to atmanam, to soul. इस मन को आत्मा में लगाओ, इसे बहिर्गामी मत बनाओ, इसे अंतर्गामी. मेक इट इंट्रोवर्ट, नॉट मेक इट एक्सट्रोवर्ट. तो इसे बाहर न जाने की बजाय पुनः पुनः इसे अंतर स्थापित करना. युंजन इव सदा आत्मानम, योगी विगत कल्मषा. Who is free from sin? Those yogi who are free from kalmash, who are free from sin, they well situate the mind into self, into the soul. Sukhen Brahma Sansparsham Atyantam Sukhamashnute. Sukhen Brahma Sansparsham, that is, they easily and constantly are in touch with Supreme. Brahma Sansparsham, whatever Sukhen, that is, they get the happiness from Supreme Lord. Sukhen Brahma Sansparsham Atyantam Sukham Ashnute, and they attain the ultimate peace. Ashnute, they attain ultimate peace by doing so. By doing what? जो योगी विगत कल्मश पाप रहित होकर इस मन को आत्मा में लगाते हैं, वो ब्रह्म के स्पर्श का, दैट इज द हाईएस्ट सुप्रीम, के सदा संयुक्त रहते हैं, वो ब्रह्म से युक्त रहते हैं और अक्षय सुख को पाते हैं. व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्स? दैट इज by concentrating mind constantly, the taintless yogi easily attains the absolute peace of contact with Brahman. जो हमारी इंद्रियां हैं, whatever are the senses, we cannot bring them because these are subtle in nature. इंद्रियां स्थूल होती हैं, our senses are subtle in nature. So those cannot be bring to soul. They will do their work, and their work is to pull on the body with healthy gesture. So हमारी इंद्रियां जो करती हैं वो शरीर की सुरक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए करती हैं, वे बहिर्गामी ही होंगी, लेकिन मन को उनका साथ नहीं देना चाहिए. मन को तो मनोराम होना चाहिए, भगवान में रमा हुआ होना चाहिए. तो जब मन और बुद्धि हमारे भगवान में रम जाते हैं तो हम अध्यात्म में अधिक तेजी से बढ़ते हैं. हमारे मार्ग में इसे रमाने का प्रयास नहीं करना है, हमें अपने भगवान राम के गुणों की चर्चा करनी है. उससे हमारी बुद्धि और मन स्वतः ही भगवान में लग जाएंगे. वी शुड चैंट राम नाम जप, and by doing so and by discussing the various abodes of Lord Ram, how they were born in Ayodhya, what was their virtues. So by discussing this, by reading the books of Swamiji, our mind and our intellect both will ultimately indulge into the soul and the super soul. Now, next verse is 6.29. Sarvabhutasthamaatmanam sarvabhutani chatmani ikshate yogayuktatma sarvatra samdarshana. Sarvabhutastham atmanam, in every living being, in every creature I am present. सभी भूत प्राणियों में, in every living creature who sees that I am proliferating, मैं उपस्थित हूं. जो सभी भूत प्राणियों में ये देखता है कि स्वयं भगवान उपस्थित हैं. सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, और मुझ में सभी भूत प्राणियों को देखता है कि भगवान का ही ये सारा पसारा है, भगवान ही व्यापक है. इट इज द गॉड who has expanded himself and ultimately encapsulated the complete universe. भगवान ही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के कण कण में भगवान है, जो दोनों प्रकार से देखता है. Whatever the part and parcel, अणुरणीयान महतो महीयान, जो छोटे से छोटा कण है वो भी मैं ही हूं, और महतो महीयान, जो बड़े से बड़ा कण है, बड़े से बड़ा जो ब्रह्मांड का पदार्थ है या व्यापक रूप है, वो भी मैं हूं.
तो जो भगवान को सर्वम च मयि पश्यति, सभी में जो मुझको देखता है और मुझ में सभी को देखता है, सर्वभूतस्थम आत्मानम, द पर्सन हु सीज situated me in all human beings, all living creatures, not only human beings, all living creatures. Sarva bhutani cha atmani, and it is me who has expanded to ultimately embrace all. I am present. Like the sun rays are ultimately, after it is scattering from sun, it ultimately resides in every part and parcel. Similarly, the person who sees that I am present in everybody, I am only present in everybody. Ikshate yoga yukta atma sarvatra samadarsana. So that person sees yoga yukta atma. That person is not any simple person or general category person. That is yoga yukta atma. That person is well connected with me, yukta atma, yoga yukta atma. By the yoga, by the meditation, that person has connected himself or herself with me. Sarvatra samadarsana. That person is not discriminating anything. That person is equanimous. वो व्यक्ति समदर्शी है जो ऐसा देखता है, वो एक कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में, चींटी में किसी में भेद नहीं करता, वो सबको एक जैसा ही देखता है. नाउ विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिना शून्य चैव स्वपाके च पंडिता दर्शिना. पंडिता समदर्शिना. विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, शून्य और कुत्ते में, जो सब में एक ही रूप मुझ में, मुझको देखता है, वही पंडिता समदर्शिना, वही समदर्शी पंडित होता है. सो लॉर्ड कृष्णा सेज दैट कि योगी के लक्षण क्या है, वो सब में मुझको ही देखता. नाउ द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस श्लोक इज वन हु हैज हिज माइंड सेल्फ एब्सॉर्ब्ड थ्रू yoga and who has the vision of sameness everywhere. See this self existing in everything and everything in his self. So whose mind has self absorbed. Mind is not wandering here and there. It is self satiated. जिसका मन स्वयं में ही संतुष्ट है. आत्मन्येव आत्मना तुष्टा. जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा. तो जो समदर्शी है उसको सब तरफ भगवान ही दिखाई पड़ते हैं. उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं. जैसे दीपावली में जो मीठी चीनी होती है, उसी के ही कई खिलौने होते हैं. कभी हाथी बन जाएगा खिलौने में, कभी घोड़ा बन जाएगा, तो कभी कुछ. लेकिन जो समदर्शी है वो देखता है कि इसमें उपस्थित तो वही चीनी है जिससे ये दीपावली के खिलौने बनाए जा रहे हैं. इन द सिमिलर मैनर द कंटेंट विद इन एवरी क्रिएचर, लिविंग क्रिएचर, इज लॉर्ड ओनली. सो हु which seeing in this manner, who that is seeing in this manner is seeing right. Yes. So one who has his mind self-absorbed through yoga and who has the vision of sameness everywhere. Though we act differently, behave differently, however, but within ourselves, the vision, the outlook is same. We should behave differently. हमें कुत्ते से अलग व्यवहार करना है, हाथी से अलग व्यवहार करना है. हाथी को दूसरी तरीके का खाना दिया जाएगा, कुत्ते को दूसरी तरीके का. उनके गुणों के अनुरूप भी हमें व्यवहार करना है. लेकिन जो हमारी अंतर्दृष्टि है वो सभी में उस परमात्मा को ही बैठा हुआ देखती है. Now, so who has vision of sameness everywhere? See this self existing in everywhere and everything in the self. So वो भगवान को ही सब में देखता है और सबको भगवान में देखता है. Now, the next verse is verse number 30. Yo mam pashyati sarvatra sarvam cha mai pashyati tasyaham na pranashyami sacha me na pranashyati. Yo mam. Now Lord Krishna is extending the same sloka continually in this verse also. Yo mam pashyati sarvatra. The person, the yogi, who is seeing me everywhere.
who is seeing me everywhere. Now, it is the Lord who is everywhere. Like a story of son and father is there. Father was not considering that there is any Lord, but the son was saying, no, daddy, there is Lord. See how the flowers are colorful. See the pattern of colors in flowers and everywhere. Everything is so arranged. So it all has been made, created by Lord. Lord is there. But dad always denies that, no, son, there is no Lord. So dad has written everywhere in the wall. That is, God is nowhere. God is nowhere. So डैड ने सारी दीवार पर लिख दिया था। पिता ये मानता था कि कहीं परमात्मा नहीं, ये सब अपने आप ही हो गया है। बेटा कहता था, नहीं नहीं पिताजी, ये फूलों के रंग देखो, इनके रंगों की बनावट देखो, इनका पैटर्न देखो, इनका चित्रण देखो, ये सब ईश्वर की ही कृति है। कितना व्यवस्थित पसारा है। लेकिन पिता नहीं मानता था। Once when father entered into room, father has seen that a beautiful painting was there on canvas, and there are the different color plates just in front of that canvas. तो जब एक बार पिता घर में आया, उसने देखा कि बहुत अच्छी पेंटिंग एक कैनवास पर बनी हुई है और उसके सामने कुछ रंगों की प्लेट्स रखी हुई हैं। तो उसने कहा, उसने सोचा ये मेरे बेटे ने बनाई होगी। So that father thought this surely is created or pictured by, painted by my son. So father embraced the son. So beautiful painter you are. How beautifully you have painted. No, dad, it is not made by me. Just a strong gust of wind came and all the colors spread and randomly, and this beautiful painting is created and not I. No, son, how it could happen? This painting, how it can be made just by a gust of wind? एक आंधी तूफान से ये कैसे बन सकती है? बेटे ने बताया, पिताजी ये तो आंधी आई थी तो रंगों की प्लेट ऊपर उछल गई और अपने आप बन गई। नाउ इन द सिमिलर मैनर son explained, everything is not random. Whatever we see around us, it is so arranged and it is all made by God. तो पिता को समझ में आया कि सब कुछ भगवान ने ही तो बनाया है, हम ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो उसने जहां जहां पर गॉड इज नो वेयर लिखा था तो डब्लू को इधर कर दिया और बोल दिया गॉड इज नाउ हियर, गॉड इज नाउ हियर, कि भगवान यहाँ है, भगवान यहाँ है। इन द सिमिलर मैनर वॉट एवर वी सी, एवरीथिंग प्रोलिफरेटिंग अराउंड अस, जो भी हमारे चारों तरफ स्पंदन हो रहे हैं वो भगवान का ही पसारा है। हमारी नजर की काबिलियत चाहिए। इफ वी आर हैविंग ए वर्दी आउटलुक, इफ वी आर हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ दैट सिक्स्थ सेंस, जब हमारे प्रज्ञान चक्षु जग जाते हैं, जब हम देख सकें तो देख लें कि इनमें क्या पीछे चल रहा है। पर्दे के आगे का तो हम देख पाते हैं, पीछे का नहीं। वही बात यहाँ कही गई है, यो माम पश्यति सर्वत्र। द पर्सन, द योगी हु सी मी एवरीवेयर, सर्वम च मयि पश्यति। सर्वम, एवरीवेयर, सीज द मी। दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो ये कहा जा सकता है कि सब कुछ भगवान का है, और दूसरा ये भी कहा जा सकता है, दो तरीके के साधक हैं। वन इज दैट हु कंसीडर दैट एवरीथिंग इज गॉड एंड द अदर्स आर शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि। दूसरा कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूं और मैं ही शिव हूं, मैं ही चारों तरफ फैला हूं। दोनों एक ही बात है। या तो सबको भगवान में मान लेना, या सब कुछ जो भगवान है उसको स्वयं में मान लेना। कैसे? लाइक इफ यू आर थिंकिंग दैट शिवोहम, तो अगर हम ऐसे केस में कहीं पर, इफ समथिंग इज हैपनिंग इन इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, देन वी विल से यस it is done by me only because I am everywhere. Anything happening anywhere, then we are not to accuse anybody. यदि मैं ही सब में हूँ, सब जगह मैं ही फैला हूँ, तो मैं किसको दोष दूं? क्योंकि मैंने ही बांग्लादेश में कराया है, मैंने ही इंडोनेशिया में कराया है, ऐसा भी माना जा सकता है। लेकिन इन दोनों ही केस में व्यक्ति समदृष्टा ही होता है। यदि बेटा पैदा हुआ तो मुझसे पैदा हुआ, बेटा मरा तो मुझ में मरा, तो समदृष्टा दोनों ही है, दोनों एक ही है। अणो रणीयान
मैं तो महीयान, सबको स्वयं में मान लो या सबको ईश्वर में मान लो, दोनों एक ही बात है। जो एकत्व को चलता है, जो द्वंद्व को छोड़, वो साधु है। तो यहाँ पर बात बताई गई है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। So the literal meaning of this is tasyaham na pranashyami. For that person, I am not lost. I am ever for that person. Tasyaham na pranashyami. Sa cha, and that also is not lost for me. वो मेरी नजर में नहीं खोता, मैं उसकी नजर में नहीं खोता। जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, वो मेरे लिए सदा है और मैं उसके लिए सदा हूँ। One who sees me everywhere and sees all things in me, he is never out of my sight, nor am I ever out of his or her sight. To lose God means to let the mind wander away from him, and to be with him means to unite the mind in him. How can we say that we are united with God? When our mind and intellect both are indulged with God सुप्रीम, जब हमारा मन और बुद्धि भगवान में रमे, उनकी ही चिंतन करते हैं, उनकी ही चर्चा करते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि वो आत्मा राम है, भगवान में ही रमता है। उसका संसार से कुछ लेना देना नहीं हूँ, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, और बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं हूँ। सो जिसका बाहर से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ वहां जाता तो है, लेकिन वो उसको खरीदारी नहीं करनी, संसार में रहता हुआ भी जो मन में ही विचरण करता है। सो फॉर दैट लॉर्ड इज नॉट लॉस्ट। सो इन दिस वे वी कैन से फॉर देम God is everywhere and always. Next verse is 3:1. Lord Krishna says, Sarvabhuta sthitam yo mam bhajatyekatvam asthita sarvatha vartamanopi sayogi mai vartate. Sarvabhuta sthitam yo mam. Sarvabhuta sthitam. I am only present in every living creature, not even in living creature, also animate and inanimate, living and non-living creature, I am only present. I am only proliferating and converting into higher and higher modes or abodes. मैं ही उनमें निवास करता हूँ और मैं उनका विकास करते हुए ऊंचा और ऊंचा ले जाता हूँ। That Lord is only proliferating and active. We are seeing that this is non-living things, but non-living things are also active. Those mountains ultimately by reaction and reaction get converted into soil. Soil due to some activity get converted into plant. When plant is eaten by animals, then the same material goes to some goat. Goat is eaten by some lion. So it is, they are converted into higher and higher creatures. पाषाण पर्वत शिला मार्ग मूरत लता बेल तरवर विटप रूप पाए, जिए फिर मरे अति कसे पशु जगत में, निष्प्रयास प्रभु पग पग बढ़ाए। पाषाण से पर्वत में, पाषाण से पर्वत बने, फिर शिला बने, फिर मार्ग बने, फिर मूरत बने, फिर लता बने, फिर तरवर बने, फिर विटप बने। लता बेल तरवर विटप, बड़े बड़े पेड़ बन गए। विटप यानी बरगद, विटप बन गए, लता बने, फिर तरु बने, फिर विटप बने, बड़े बड़े पेड़ बने। विटप रूप पाए, जिए फिर मरे अति कसे पशु जगत में, वहां से हम पशु जगत में आए और फिर उसके बाद मनुष्य योनि में आए। तो जो 84 लाख योनियां, इसमें तो प्रभु ने ही हमको आगे बढ़ाया, निष्प्रयास प्रभु पग बढ़ाए। सर्वभूत स्थितम यो माम, so the person who sees me only, proliferating or active in every creature, living or non-living, every creature. Bhajatya ekam asthita, so bhajatya ekatvam asthita, so ultimately submit to me, सब में मुझको देखते हुए मुझको वो नमस्कार कर लेता है, मुझको ही भजता है। एकत्वम आस्थिता, that ultimately as I am आस्थिता established in them, so that person भक्त मुझ सब में मुझको देखता है
और सिया राम मैं सब जग जानी, अब करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि सब में मैं सिया राम को ही देखता हूँ, और इसी तरीके से पानी यानी हाथ को जोड़कर करहूं प्रणाम जोरी जुग, दोनों हाथों को करबद्ध को प्रणाम करके जोड़कर मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सो दैट एवरीवेयर इट इज लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड इज रिजाइडिंग। सो इन दिस मैनर वी शुड सी, देन वी कैन नॉट कंप्लेन फॉर एनीथिंग, क्योंकि भगवान हमें सब में प्रिय। यदि भगवान ही सब जगह दिखाई देने लगे तो संसार में दोष कहाँ दिखेगा? हम अच्छी चीजों को देख पाएंगे, पहले गुणों को देख पाएंगे, फिर इन्हीं से निर्गुण भी हो जाएंगे। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, सर्वथा इन ऑल काइंड्स वर्तमाना अपि स योगी मयि वर्तते। So in all kinds which are as it is, which as it is remains, योगी मयि वर्तते, सबको देखता हुआ भी वो मुझको ही वर्तता है, that is dwells in me. Now the literal meaning of this verse is that yogi who being established in unity adores me as existing in all things, he exists in me in whatever condition he may be. So that yogi is not worrying even about himself or herself. That yogi sees that I am everywhere. तो भक्त दुलारे राम के जित चाहे तित जाएं, तिनके पीछे हरि फिरें कहीं भूखे ना रह जाएं। तो जो भक्त भगवान के बारे में ही चिंता करता है, रमता है, तो भगवान उसकी स्वयं चिंता करते हैं, तो भगवान उसमें ही निवास करते हैं। God is all pervading in this world. He is also seated in everybody's heart as supreme soul. So now that's why Lord Krishna says, I am situated in hearts of every living being. Thus, within the body of each living being, there are two personalities. One is the soul and other is the super soul, that is the Lord. So, Lord is also within us. कभी कभी हम खुद को, कुछ लोग खुद को शरीर देखते हैं. Some are perceiving this as a body, some are seeing that it is a soul, and some are seeing that it is a super soul. There are three kinds of outlook in this world. कुछ लोग इस संसार में जो जैसा है उसको वैसा देखते हैं. ये राम, ये कमला है, ये ऐसे सीता है, तो ये रवि है, ऐसे ऐसे करके देखते हैं. जो जैसा है, whatever is there, they are seeing in this manner. किसी का ऑडियो ऑन है, उसे ऑफ कर लें. नाउ इन अदर केसेस the persons are seeing, the sadhaks are seeing that there is a soul in everybody. कुछ लोग शरीर को नहीं देखते, उनके भीतर एक उपस्थित आत्मा को देखते हैं, सूत्रे मणिगणाय. और कुछ लोग उससे भी ऊपर हैं, परम योगी हैं, परम हंस हैं. They are seeing that there is the Lord which dwells in all. अपने आत्मा से भी ऊपर उनकी दृष्टि और उत्तम है, वो देखते हैं वही भगवान तो सब में रमा हुआ है. तो तीन प्रकार की दृष्टियां हैं. एक जो मनुष्य को मनुष्य की तरह देखती है, कुत्ते को कुत्ते की तरह देखती है, हाथी को हाथी की तरह. दूसरा सब में एक ही आत्मा को देखता है. और तीसरी दृष्टि है कि जो सब में रमे हुए भगवान को देखता है. नाउ एनीबडी हु इज रिसाइटिंग भजन, भजन कौन गाएगा? कोई है गाने वाला? गा दे भैया, हम गा दे. हाँ, आप गा दीजिए गीता जी. श्री राम जीवन में छाई बहार, गुरु के संग प्रीत लगा के, सच्चा मिला आधार. गुरु के संग प्रीत लगा के, जीवन में छाई बहार. जग को समझ के हम तो बेचैन होते थे, जग को समझ के कुछ हम बेचैन होते थे. हालत बदलती थी तो हंसते थे रोते थे, हंसते थे रोते थे, बेचैन होते थे,
मिथ्या हुआ संसार, गुरु के संग प्रीति लगा के, सच्चा मिला आधार, गुरु के संग प्रीति लगा के, जीवन में छाई बहार। खोजा था जिसको हमने मंदिर ठिकानों में, खोजा था जिसको हमने मंदिर ठिकानों में, पाया न उसको लेकिन सारे जमाने में, सारे जमाने में, मंदिर ठिकानों में, दिल में मिला दिलदार, गुरु के संग प्रीति लगा के, सच्चा मिला आधार, गुरु के संग प्रीति लगा के, जीवन में छाई बहार। थोड़ी बची है व्यर्थ गंवाना ना, थोड़ी रही है व्यर्थ गंवाना ना, बचनों में डूबे रहना, प्रीति भुलाना ना, प्रीति भुलाना ना, व्यर्थ गंवाना ना, खुशियाँ मिली बेसुमार, गुरु के संग प्रीति लगा के, सच्चा मिला आधार, गुरु के संग प्रीति लगा के, जीवन में छाई बहार। गुरु तेरे प्यार ने निश्चय कराया है, गुरु तेरे प्यार ने निश्चय कराया है, मुक्ति के लिए मानुष चोला भी पाया है, मानुष चोला भी पाया है, निश्चय कराया है, हो जाएंगे भव से पार, गुरु के संग प्रीति लगा के, सच्चा मिला आधार, गुरु के संग प्रीति लगा के, जीवन में छाई बहार, गुरु के संग प्रीति लगा के, सच्चा मिला आधार। श्री राम। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, नतमदिष्टं नतमदिष्टं, पाहि मां रक्ष मां, तेरी इच्छा पूर्ण हो मां, हम सब तेरी शरण में अपने चरणों की भक्ति दो। श्री राम। राम राम भैया, राम 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 राम। हमें कुछ नहीं करना है, परमात्मा स्वयं हमारा जिम्मेदारी उन्होंने ली है। चरण स्पर्श सार यही है कि परमात्मा ने जिम्मेदारी ली है। दीदी राम राम, चरण स्पर्श। ये सब भक्ति मार्ग है हमारा, राम नाम जपते जाना है, होता चला जाएगा। सब कठिन काम नहीं करना है, केवल राम नाम का जाप बढ़ाते जाओ, और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, है ना। और व्यवहार, साधना और व्यवहार, एक छोटा साधक भी हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। उसके भी संस्कार है ना। कर रहा है सबके।
चरण स्पर्श कर सबके। हाँ, राम राम शिवाय राम आशीर्वाद। राम। राम राम। बहुत आनंद आया, राम, सबको राम राम। सभी बहनों को राम राम। Thank you to all for joining this session. We will meet again next week. Ram Ram. राम।